Namaskar. It's wonderful to welcome all of you back on this video. This video is about empowering all of you. And through what? If you ask a question, I want to grow economically. How do I understand how to do so? This video is about that. Let's go ahead and find out what it is. Every economic activity starts from demand. मांग अगर नहीं तो कोई एक्टिविटी ही ना हो। तो अगर मांग होगी कोई वस्तु की, कोई सेवा की, अगर मांग होगी तो प्रोडक्शन होगा, राइट? दिस डिमांड विल बी प्रोडक्शन। इफ देयर इज प्रोडक्शन, then somebody will produce, and then that person who produces has to sell, so there will be sales. So if production goes up, sales goes up, right? So if sales goes up, obviously the person who is selling would always like to sell on a profit, no? So profit will go up. There is no doubt about it. It's very common sense. And if profit goes up and all expenditures are met after the, that's why the profit, then the person will, or the persons will save out of that profit, बचाएंगे, बचत होगी. And if there is saving, obviously, if there is more saving, there will be more investment, back into business, back into some productive activity. So there will be investment. So investment is productive activity. And if there is investment, obviously there will be more production, right? So if there is more production, obviously that can only be done if there is more employment. And if there is more employment, people will get more income. If people get more income, there will be more demand, right? So the whole cycle is that about demand, right? Now, please remember, if demand slows down, everything will slow down, right? And that is where the economy or even the individual starts taking a slide, यानी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा. डिमांड नहीं है तो फिर तब तो फिर नीचे ही आना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है. चाहे डिमांड कोई भी चीज का हो या किसी व्यक्ति का हो, अगर डिमांड ना हो, मान लिया जाए कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में सडनली लोगों की डिमांड कम हो गई, यानी एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो सारा साइकिल फिर वैसे ही चलने लगेगा. सो दैट इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड. So what does the government do in order to increase demand? So it does several types of activities. In fact, two types of activity. One, it invests. Invests in what? In building bridges, roads, etc. Right? So these are productive activities. Then the second thing is it does welfare activities, social welfare activities. It may give scholarships, it may give funds for NGOs to work, or it may give, you have seen here the example given, and the big example is Manrega. It's a big welfare activity. And this welfare activity, Manrega, is not something small. It's very big because hundreds and thousands of people are given work, and because they are given work, some kind of work, and if they are given work, obviously they'll be given wages. If they give wages, there will be demand for things, and so on. So this is one way by which government tries to increase demand. And the other way, which you see here, investment, build roads, bridges. Who builds the roads and bridges? It's not always the government builds roads and bridges. ऐसे तो है नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर को देती है ना. रोड्स ब्रिजेस बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अधिकांश देती है. हमारे देश में L&T को मिलता है वगैरह, कई इस तरह से बिग बिग फर्म्स को मिलता है काम. और गवर्नमेंट भी करती है, पीडब्ल्यूडी वगैरह के थ्रू गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है वगैरह से. जब भी whenever these activities takes place, तो फिर डिमांड फॉर ये होगा, मतलब रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए सीमेंट, बालू, आयरन एंड सो ऑन, एंड देन देयर विल बी लेबर आल्सो. और इन सबको फिर वेजेस दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा. एंड देन उनको अगर सैलरी वेजेस दिया जाएगा तो फिर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होगा, फिर और प्रोडक्शन होगा, एंड सो ऑन. तो गवर्नमेंट ऐसा करती है. जो गवर्नमेंट नहीं करेगी तब मुश्किल हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन उठेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगी क्या? आसान नहीं है. प्राइवेट सेक्टर कुछ भी करेगी तो प्रॉफिट के लिए करेगी, ये एकदम रूल है. गवर्नमेंट की बात ऐसा नहीं है. जरूरी नहीं कि हर चीज प्रॉफिट के लिए ही करे, राइट? सो देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि इनकम कैसे जनरेट होता है इकोनॉमी में. तो क्या होता है कि
जो साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, इनको बिजनेसमैन वगैरह, इंस्टीट्यूशनल जो प्रोमोटर्स होते हैं, वे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक जगह लाते हैं इन सबको, इनको एक जगह ला करके भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, राइट, सो दैट फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जा सके। और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तब ऑब्वियस है कि सबको एम्प्लॉय करते हैं, और इन सबको मैन, मनी, मशीन, मटेरियल को सबको इनकम देंगे। तो इन, है ना, तो मैन वर्कर्स को क्या देंगे, मैन को क्या देंगे, वेजेस देंगे, सैलरीज देंगे। और फिर जो जो प्रोमोटर्स होता है, जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, वो क्या लेता है, वो प्रॉफिट लेता है। और जो रिसोर्सेज ओन करते हैं, जिनकी ओनरशिप होती है मशीन वगैरह की, जिनकी, उनको मशीन को अगर रेंट में दिया है तो रेंट मिलता है, या अगर वो बेच रहे हैं तो फिर उनको भी प्रॉफिट होती है, राइट। उसी तरह से जो मनी देते हैं, यानी कैपिटल देते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इंडिविजुअल हो, तो वो क्या चाहता है, वो इंटरेस्ट चाहेगा उससे। तो यानी जो इनकम होगा, इनकम को इन चारों में बांटा जाएगा। जब इन चारों में बांटा जाएगा, इसका मतलब है कि उस पूरे देश में वो इनकम के रूप में आएगा, और वो इनकम अगर काउंट कर सकें तो वही नेशनल इनकम होगा, ठीक है। तो कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं, वो चूंकि अकेले होते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, यानी रिसोर्सेज भी उनका होता है, प्रॉपर्टीज भी उनकी होती है, काम भी खुद करते हैं, तो फिर अकेले ही सब कुछ करते हैं, तो सारा कुछ, उनका वेजेस भी उनके पास रहता है, प्रॉफिट भी उन्हीं के पास, रेंट भी उन्हीं के पास, इंटरेस्ट भी उन्हीं के पास रहता है। तो ऐसे कई सिंगल ओनरशिप बिजनेस हैं। बड़े सभी बिजनेस बड़े बिजनेस है नहीं। आपने किराना दुकान तो सुना ही होगा, अकेले लोग काम करते हैं। तो इस तरह से इन चारों को मिला करके जो इनकम देश का होता है, वो नेशनल इनकम होता है। पूरे इकोनॉमी का जो एक साल में जो होता है, वो नेशनल इनकम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के संबंध में हम लोग कह सके कि हाँ, इनका इसका इतना, इनका ये इनकम है, इनका ये इनकम है। ऐसा हमेशा होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि किसान या दूसरे दूसरे जो इस तरह के काम करते हैं, उनका इनकम कहाँ से काउंट किया जाए? बहुत मुश्किल है काउंट करना कि हर महीना वो कितना कमाते होंगे, तो उनसे कौन अकाउंटिंग लेगा, कौन पूछेगा वगैरह। तो उनके इनकम क्या होता है कि नेशनल इनकम में काउंट नहीं होकर एस्टिमेट होता है, क्योंकि काउंट करना मुश्किल है। उनका जो डेटा है वो निकालना मुश्किल होता है। डेटा जब निकालना मुश्किल होता है तो एस्टिमेशन होती है, अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान लगाया जाता है, और यह सोचा जाता है कि यह पूरे देश का इनकम, इनका भी इनकम मिला करके ऐसा होगा। तो ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। तो ये देखते हैं कि ये कैसे है। देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ है। उसमें से क्या है कि करीबन 65 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही यही डेटा कहता है कि 65 करोड़ लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और उसमें से 13 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और बाकी जितने लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है भाई? ऑर्गेनाइज्ड वो है जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, लाइसेंस उसको मिला हुआ है, और जहां जिसका सारे तरह का इनकम डेटा अवेलेबल है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइज्ड है। और इन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं ना, उनको बहुत एडवांटेजेस, उनको प्रॉपर सैलरी मिलता है, इंश्योरेंस होती है, सोशल सिक्योरिटी होता है वगैरह होता है, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड। जो बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनका तो कोई जरूरी नहीं है कि सैलरी टाइप का होगा या वेजेस टाइप का होगा, जरूरी नहीं है। तो कभी काम होएगा, कभी काम नहीं रहेगा, कभी बेच पाएंगे, कभी नहीं बेच पाएंगे। जैसे सब्जी बेचने वाले हैं, कभी ज्यादा बिकेगा, कभी कम बिकेगा। पान, चाय दुकान, किसान, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ये बहुत बड़ी तादाद में है। तो आश्चर्य की बात यह है ना कि इस देश में करीब करीब सिर्फ 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं 65 करोड़ में से, उनमें से 7 करोड़ के ऊपर लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। यानी उनकी अर्निंग इतनी नहीं है बाकी लोगों की इनकम टैक्स दे पाए, ठीक है। तो एवरेज इनकम, कब जब इनकम टैक्स देते हैं लोग, एवरेज इनकम, अगर जो 40 करोड़ लोग हैं ना, उनका एवरेज इनकम 10,000 रुपए पर मंथ से नहीं हो पाता है, ठीक है। जिनका होता है वही टैक्स देते हैं, यानी अगर 40,000 रुपया पर मंथ कमाए तब जाकर के टैक्स देते हैं। तो कितने लोगों का 40,000 रुपया पर मंथ का इनकम है? आखिर कितने ही लोगों का होगा? 13 करोड़ में से
मान लिया जाए, मैंने कहा ना कि 7 करोड़ लोग होंगे जिनकी इनकम है ऐसा कि इनकम टैक्स दिया जा सके, राइट? ओके, so a large number of people, I mean approximately about 40 crore people, earn less than 10,000 rupees a month. You might think that whether this is true or not true, but look up any data which is available with the government, approximately available with the government. This is what it is. All right. Now you see, among the total working people of 65 crore, about 35 crore work in the agriculture sector. और ये जानिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है। एक छोटा सा फार्म है, उसमें पूरा परिवार काम कर रहा है। तो पूरे परिवार काम कर रहा है तो पूरे परिवार का इनकम क्या ही होगा, राइट? यानी जो छोटा सा इनकम है वो पूरे परिवार में बढ़ जाता है। ये बात समझने की है। तो अब छोटे किसान ही अधिक हैं, बड़े जो किसान होते हैं वो बहुत कम है, मुश्किल से 5 से 7% है। बाकी सब छोटे किसान ही है पूरे इंडिया में, राइट? तो अगर एक घर के 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग काम कर रहे हैं तो इमेजिन कर सकते हैं प्रति व्यक्ति क्या आय होगी। इतनी छोटी सी आय होती है सबकी, इसीलिए हालत खराब रहती है सबकी। करीब 13 करोड़ लोग कॉरपोरेट सेक्टर या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह में काम करते हैं और बाकी सब अपना खुद का काम करते हैं। तो कोई बार्बर होता है या कोई लोहार होता है, तो कोई सब्जी बेचता है, तो कोई पान दुकान खोलता है, कोई चाय बेचता है, सब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये तो सिनेरियो है, यानी जो हमारी प्री इकोनॉमी की सिनेरियो है। आप इन सब से अंदाज लगा सकते हैं कि ग्रो फिर कैसे किया जाए, किसको ग्रोथ कहें, क्या कहें, कैसे ग्रो होगा, ये समझना है। ये जो वीडियो है इसे देख करके आप खुद ब खुद समझिए, तब आगे बढ़ने की बात आप सोच पाएंगे। तो कैसे होगा? जब तक जो इंडियंस हैं इंडिया में, अधिकांश लोग अगर 10,000 रुपये से बढ़ करके 40,000 रुपये प्रति मंथ नहीं कमाएं तो ग्रो कैसे करेंगे, राइट? ये सोचने की बात है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो यू हैव टू थिंक, how do I grow therefore? How do I get at least 40,000 rupees per month? How do I get? So do I have to do some know some skill, some knowledge? कुछ बढ़ाना होगा, स्किल नॉलेज तो बढ़ाना होगा, तो बढ़ाना होगा, कोई चारा नहीं है, राइट? उसके बाद एग्रीकल्चर से लोग अगर शिफ्ट होंगे सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में, तब जा करके सही में ग्रोथ होगा, ठीक है? यानी जो फार्मर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, डेली वर्कर्स हैं, इनकी भी अगर इनकम 20,000 रुपये से प्रति महीने अधिक होने लगेगी तब तो प्रोग्रेस होगा, नहीं होगी तो फिर जहां है वहीं रहेगा, ठीक है? तो जब इनका इनकम इस प्रकार होगा, यानी 20,000 से 40,000 के बीच में इनकम होगा, तो और डिमांड होगा वस्तुओं का, सारी वस्तुओं का। जैसे ही डिमांड होगा वैसे ही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो सेल्स होगा, तो प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एंड सो ऑन। तो इंडिविजुअल भी ग्रो करते हैं इसी प्रकार, और और पूरी इकोनॉमी भी ग्रो करती है। और सच बात यह है कि पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है तभी इंडिविजुअल भी ग्रो करता है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई एम सॉरी दैट आई हैव टू कीप स्पीकिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश, just because as many people understand these videos so much better, we will be of service to this country, तो हम अगर समझेंगे तो हम इस देश, हम हमारे देश के लिए यानी काम के लायक व्यक्ति होंगे। Thank you very much. I hope that you will keep watching our videos. If you like, then share. Not because of any other reason, but let everybody know and let everybody become a part of this growth. Thanks once again. Thanks a lot.